Good morning, kids. Welcome to the second lesson of OC, which is functions of management, and move on to the last point of it, which is controlling. Controlling is taking steps to bring actual results and desired results closer together. कंट्रोलिंग क्या होती है बच्चों? कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम कुछ ऐसे कदम उठाते हैं या कुछ ऐसी प्रोसेसिंग्स करते हैं कि जिससे हम एक्चुअल रिजल्ट्स या जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं, जो टारगेटेड रिजल्ट्स होते हैं, हम उनके करीब पहुंच जाते हैं, है ना? बाय अवॉइडिंग वेस्टेजेस and by controlling the things, by controlling the things. Now let's have a look toward, we can say, importance of controlling. The importance of controlling are as follows. For example, fulfilling goals of your organization. Controlling helps in fulfilling goals of organization. And as the company, the firm or the organization, है ना, avoiding vestiges of things. Yeah, control over the things which the person is using in the organization. So, but of course, it will help in fulfilling the desired goals of your organization. And what is the main aim of your organization? To earn profit by using minimum available resources. हर एक कंपनी का मकसद होता है बच्चों कि चीजों का नुकसान कम हो, कम से कम चीजों से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे बना ले या कैसे हम ज्यादा पैसा कमा पा ले। अब हमारा कंट्रोलिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है बच्चों कि फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है, क्या फुलफिल करना है? तो भाई हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है प्रॉफिट अर्न करना, है ना, टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय यूजिंग minimum available resources. Move on to the next one, which is efficient utilization of resources. The second point is efficient utilization of resources. Efficient utilization of resources means what? Again, it includes two things, है ना, to avoid wastages, proper use of available things in efficient manner. Okay, this we can say next importance of controlling is efficient utilization of resources, which is also known as proper utilization of resources. Now, what do you mean by proper utilization of resources? To avoid wastages, to control on, we can say, to control over the things, है ना, for avoiding wastages and all. Proper use of available things, whatever things या whatever resources are available in the organization, we have to use these resources in proper way and in efficient manner. So it will directly result in controlling the things in your organization. हमें क्या करना है बच्चों कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें हमारे पास में हाल फिलहाल में प्रेजेंट है, उन सारी चीजों का क्या करना है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है या उनका एक इफिशिएंट यूटिलाइज करना है उन चीजों को, जिससे कि हम उनका वेस्टेजेस अवॉइड कर पाएंगे, उन चीजों पे कंट्रोल कर पाएंगे या उन चीजों का प्रॉपर वी कैन से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम उन चीजों का प्रॉपर इस्तेमाल कर जाएंगे, इफिशिएंट वे में कर पाएंगे, तो बट ऑफ कोर्स हमारी ये कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी बच्चों? इसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं अगली तरफ। Okay, the next point is accuracy. Accuracy मतलब कि क्या? Accuracy in, we can say, accuracy in standard of work. हर एक whatever work is been assigned or delegated to the employees, है ना, it should be accurate. Yeah, some standards should be there.
है ना, उसमें क्लास होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, काम जो है बहुत ही परफेक्टली होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना है. The process of completing the work, we can say accurately or completely, it's known as controlling process. है ना, by controlling over the things, we can complete the work accurately. चीजों के ऊपर कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम हमारी चीजों को एक्यूरेटली बना पाएंगे, या उसी पर्टिकुलर वी कैन से क्वांटिटी में, क्वालिटी में, या जैसा भी हमें चाहिए था, वॉट एवर इज अ डिजायर्ड आइटम और प्रोडक्ट, हम लोग उसको उसी हिसाब से बना पाएंगे, है ना. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट. हमारी एक्यूरेसी हमें किस चीज में मदद करती है, टू हेल्प और टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मूव ऑन टू द फोर्थ वन विच इज मोटिवेशन. Motivation again, and by motivating employees, yeah, by motivating employees, we can control, by motivating the employees, we can control over wastages happen in the organization by providing them incentives, by providing them promotional events, by increasing their salaries, by increasing their salaries. All these things are helps in motivating a person. And if once the person is motivated, but of course the person is work from heart in the organization. अगर एक बंदे को हम, the person who is working in our organization, we have to provide so we can say so many motivational words. Yeah, we have to support the employees, है ना, by providing them or by giving them incentive facilities, then by providing them we can say promotional events, by increasing the salary of the person, by providing training to them. अगर हम हमारे एम्प्लॉय को इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो बंदा क्या करेगा, बट ऑफ कोर्स मन लगा के काम करेगा, और जब वो मन लगा के काम करेगा तो बट एक्चुअल हमें एंड में क्या होने वाला है, एंड में हमें वी कैन से प्रॉफिट ही अचीव होने वाला है. आइए देखते हैं अगला पॉइंट. एंश्योर ऑर्डर एंड ensure order and discipline. Ensure order और discipline मतलब कि क्या, while working in the organization, the work should be in we can say a discipline format, means systematic work should be we can say systematic work. You know, for example, so many workers are working in one organization, yeah, under one roof, so there should be we can say coordination between them, है ना, and the work whatever work they are doing that should be in systematized format. हमारा जो काम है वो भी कैसा होना चाहिए बच्चों, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में होना चाहिए. डिसिप्लिन शुड बी देयर. उन वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, while completing the assigned work. The next one is coordination. Coordination plays very important role in achieving a desired goal for the organization. Coordination बहुत ही we can say अहम किरदार अदा करता है कंपनी का प्रॉफिट अचीव करने के वक्त. आइए कोऑर्डिनेशन देखते हैं. कोऑर्डिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एक होती है we can say for example 3 types of we can say levels are there in each organization: top level, middle level एंड लोअर लेवल. लोअर लेवल के अंदर आ जाते हैं मेरे वर्कर्स, यहाँ पे आ जाते हैं मेरे डिपार्टमेंट हेड्स, एंड हियर मैनेजर्स, है ना. तो टू हैव अ कोऑर्डिनेशन या डिटेल्ड इंटरेक्शन बिटवीन 3 levels of management, the process of we can say having a detailed information about each and every department is coordination. And there should be a proper coordination between manager, department and the workers. तभी हमें पता चलेगा कि exactly what is going on in our organization,
कोऑर्डिनेशन अगर पूरी तरह से रहेगा या अच्छा रहेगा, तभी हमारी कंपनी बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हमारा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। समटाइम्स व्हाट हैपन ना, बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड ऑन टारगेट बेसिस, है ना, दे हैव टू कंप्लीट अ वी कैन से desired target, yeah, they have to give some best performance of their works to we can say for increment, for promotion या for any other thing। बहुत सारी कंपनीज के अंदर होता है बच्चों कि टारगेट के ऊपर काम होता है या परफॉर्मेंस बेस्ड काम होता है कि जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगी, आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, या आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सो इट क्रिएट अ साइकोलॉजिकल प्रेशर we can say amongst employees of the organization, which will result in we can say which will result in कि जब हमारे एम्प्लॉयज के साथ में साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता जाएगा, तो बट ऑफ कोर्स दे विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क एंड इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे एम्प्लॉयज के बीच में साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके मन में बढ़ता चला गया कि टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, परफॉर्मेंस अगर अच्छे से नहीं आया तो क्या होगा एंड ऑल, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे वर्क पे इफेक्ट पड़ेगा। एम्प्लॉयज के मन में वी कैन से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है उनके दिमाग में, जिसकी वजह से हमारे काम पे इफेक्ट पड़ेगा, और जैसे हमारे काम पे इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंपनी को लॉसेस सफर करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। द नेक्स्ट वन इज efficiency and effectiveness। Now efficiency and effectiveness of a person is है ना, to great work, yeah, good work, yeah, we can say best work। When a person is works efficiently or effectively in the organization, but of course उसका काम रहेगा सबसे अच्छा, बेस्ट और गुड। एक बंदा अगर पूरा मन लगा के हमारी कंपनी में काम कर रहा है बच्चों, तो बट ऑफ कोर्स या पूरी जान लगा के पूरा मन लगा के वो बंदा काम कर रहा है, तो उसका काम क्या होगा, हमेशा गुड होगा, ग्रेट होगा या बहुत अच्छा होगा, जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हम इजीली हमारी कंपनी का गोल अचीव कर पाएंगे। गोल मतलब कि हमारा प्रॉफिट या हमारा डिजायर्ड टारगेट हम इजीली अचीव कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला वाला पॉइंट, it helps in building good corporate image। Okay, it helps in, it means we can say controlling helps in building good corporate image, as the company is avoiding wastages, focuses on we can say targets of the company, and the company is we can say achieves we can say profits, the company earns profits every year। So but of course it will help in building a good corporate image of the organization in the market। अब ये जो हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस है बच्चों, उसका जो 9th इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि अगर हम हमारे वेस्टेजेस को अवॉइड करते रहेंगे, अगर हम हमारे टारगेट की तरफ फोकस करते रहेंगे, और फोकस करने के बाद में क्या होगा, हमारी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अचीव होता चला जाएगा। जब हमारी फर्म को प्रॉफिट अचीव होता चला जाएगा तो ये हमें मदद करेगा हमारी कॉर्पोरेट इमेज बनाने में, हमारी एक मार्केट में बहुत अच्छी इमेज बनाने में यह हमारी मदद कर सकता है। आइए मूव ऑन करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, एक्ट एज अ गाइड। एक्ट एज अ गाइड, कंट्रोलिंग एक्ट एज अ गाइड, कंट्रोलिंग एक्ट एज अ गाइड है ना, फॉर अचीविंग desired result।
results, or we can say goal. Okay, the last point of the session is कि it acts as a guide for achieving desired goals or results. कंट्रोलिंग हमें किस चीज में मदद करता है बच्चों? कंट्रोलिंग हमें मदद करता है कि जो भी हमारे डिजायर्ड गोल और टारगेट्स है उसके लिए हमने कैसे एक्ट करना है या अपने आप को कैसे गाइड करना है कि आप ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो। ये सारी चीजें हमें मदद करती है हमारी कंट्रोलिंग की प्रोसेस के लिए, और जिसकी वजह से हम हमारे टारगेट अचीव कर पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।